Good morning, students. In previous class, we studied about the presentation of data by textual form or tabular presentation. Today we discuss about the kinds of table by which we presenting the data. Kinds of table. The first kind is based on according to purpose. According to purpose, there are two type of table. First is general purpose. General purpose table. And second one is special purpose table. Now, what is general purpose table? As you know, we are using the tables for presenting the data in a beautiful form that they can be understandable. Here, the first differentiation is based on purpose. So, the first differentiation is general purpose table. This is the table which is used for presenting the data for the general purpose. This table is also known as the data bank, or this is a table where all the data are presenting in such a way that the scholars or researchers can use these data in their research. यानी इस डेटा को वो अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं है. इट इज अ जर्नल टेबल. एनीवन कैन यूज दीज डेटा फॉर देयर पर्पस. क्योंकि एक जर्नल टेबल है, कोई भी इन डेटास को अपने यूज के लिए ले सकता है. तो दिस इज द टेबल विच इज नोन एज द डेटा बैंक, क्योंकि हर तरह के डेटा इसमें अवेलेबल है. सेकेंड थिंग, इट इज यूज एज द रेफरेंस. सो दिस journal table is also known as reference table. इसे हम reference table के नाम से भी जानते हैं. And the second one is special purpose table. These table are constructed for the special or unified purpose. That's why this table is also known as summary table. जो जनरल टेबल है, वी जस्ट यूज द नॉन एज डेटा बैंक. उस तरह की टेबल को हम डेटा बैंक कहते हैं, क्योंकि दीज डेटास आर जस्ट यूज इन अ जनरल पर्पस और रेफरेंस. बट द स्पेशल पर्पस टेबल इज यूज फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस. दैट्स व्हाई दिस टेबल इज नोन एज द समरी टेबल. ये दोनों चीज समझ में आ गई? yes, इसमें कोई दिक्कत दोनों में? ठीक है. लेखराज, तुम अभी आए हो, तुम्हें क्लियर हो गई ये दोनों टेबल? यस मैम, एक तो हो गई. अच्छा, दोबारा मैं आपको बताती हूँ. वी आर जस्ट डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ टेबल. द फर्स्ट डिफरेंशिएट इज, जो हम देख रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस. सो देयर आर टू टाइप ऑफ टेबल्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस. दैट इज जर्नल और सेकेंड इज स्पेशल टेबल्स. द जर्नल टेबल्स विच प्रेजेंटिंग द डेटा in a form, that's why they are known as data bank. ये वो टेबल है जो डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सारी आपकी जो नीड्स है, कोई स्पेसिफाइड नहीं, ये जनरल यूज के लिए होती है. These data are used for references in the research areas. That's why the journal table is also known as reference table. जो journal table है उसको हम reference table भी कहते हैं. And the second one is special table. This is the table by which we presenting the data for a special purpose. किसी special purpose के लिए आप उस data को use करते हैं. So this is not a collection of data. इसमें सारे data present नहीं करते. That's why this is also known as summary table. इसको summary table के नाम से भी जानते हैं. अब clear हो गया? Yes ma'am. Okay. And the second kind is according to origin. From where the table is originated. So that is दो तरह से हो जाएगी, ओरिजिनल टेबल
and second one is derived. ठीक है. What is original table? The table in which we presented the data which is we collected their own. हम वो डेटा जो हमने खुद कलेक्ट किए, कहीं रेफरेंसेस से नहीं लिए, उसे हमने जब प्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज द ओरिजिनल टेबल. और ड्राइव टेबल व्हेन वी पुट एनी टेबल फ्रॉम रेफरेंसेस और अदर सोर्सेज. जब आप किसी सोर्स से उस टेबल को ले रहे हैं, जैसे हमने टेबल बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था टेबल नंबर, ऊपर हम लिखते हैं टेबल नंबर, और फुटनोट में जब नीचे जाते तो हमने लिखा था सोर्स. सोर्स माना वेयर यू गेट दिस टेबल. ये टेबल आपने किस बुक से ली, किस पब्लिकेशन से ली, या किस जर्नल से आपने उस बुक को कैप्चर किया. सो देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल. फर्स्ट इज ओरिजिनल टेबल which you don't take and from any other resources, जो आपने अपने आप बनाई, कहीं से ली नहीं. The derived table is known as the table which you just take as a reference from other resources. जब आपने कहीं resources से उस टेबल को यूज में लिया. ये क्लियर हो गया? Yes. Okay. Now the third type of table. जो हम थर्ड टाइप दे, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी वो टेबल कैसी है. तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, according to construction there are two type of table. Simple table जिसे हम वन फोल्ड टेबल भी कहते हैं. It is also known as one fold table. और ये होती है कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल में तीन तरीके हैं. सबसे पहला टू फोल्ड टेबल, थ्री फोल्ड टेबल एंड मैनी फोल्ड टेबल. ठीक है. अब हम थर्ड जो डिफरेंट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, आपने टेबल कैसे बनाई. तो फर्स्ट इज सिंपल टेबल विच इज ऑल्सो नोन एज वन फोल्ड टेबल, यानी जब आपने डेटा को केवल वन वे में प्रेजेंटेड किया. इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. If you want, just take a screenshot. Yes, ma'am. ओके. नाउ मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ. एग्जाम्पल 1 देखेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपका सिंपल टेबल से है. जो सिंपल टेबल है विच इज नोन एज वन फोल्ड, विच इज नोन एज वन फोल्ड टेबल. हम यहाँ पर टेबल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लीजिए हमने लिया क्लासेस. ठीक है, आपने क्लासेस के बारे में बता रहे हैं और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कितने स्टूडेंट्स उसमें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब मान लीजिए आपने यहाँ लिया, पहले मान लीजिए 9th लिया, फिर आपने 10th लिया, फिर 11th लिया और 12th लिया, देन टोटल. ठीक है. आपने कहा कि मान लीजिए 9th में आपके यहाँ स्टूडेंट है 125, 10th में मान लीजिए 140 है, 11th में करीबन 200 स्टूडेंट है और यहाँ 260 स्टूडेंट है आपके 12th में. आपने उसको टोटल किया, 5, 10, 12 पर 2, 1 कैरी, 3 और 4, 7. तो 724 students are in your school from 9 to 12. This is the table which shows only one fold motive. That's why this table is known as the simple table.
क्योंकि इसमें केवल एक ही डेटा के बारे में बताया जा रहा है, एक ही फोल्ड, एक ही डाइवर्जन के बारे में बताया जा रहा है. दैट्स व्हाई दिस टेबल इज नोन एज ओनली सिंपल टेबल, और अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन दिस इज ऑल्सो नोन एज वन फोल्ड टेबल. समझ गए? यस Yes, ma'am. ओके. अगर इसी टेबल को हम टू फोल्ड बनाना चाहें, इसी टेबल को, अगर मैं बात कर रही हूं आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल की, कॉम्प्लेक्स टेबल, और आई वांट टू शो दीज डेटा इनटू द टू वे टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल में हम चल रहे हैं टू वे टेबल पे. अब हमने इसी डेटा को, जैसे आपने ली क्लास, और क्लास के साथ आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए. जब स्टूडेंट्स लिए तो आपने उससे पार्टिसिपेट कर दिया कि इसमें डिवाइड कर दिया कि हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर. तो आपने कहा बॉयज और गर्ल्स. और यहां आपने किया टोटल. सबसे पहले आपने ली 9th क्लास. ठीक है, 9th क्लास में कितने स्टूडेंट थे हमारे पास? 9th क्लास में 125 स्टूडेंट हैं. ठीक है, इस 125 में बॉयज है 75. ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया? 50. गर्ल्स कितनी है? 50. ऐसे ही जब हम क्लास 10th की बात करते हैं तो हमने देखा उसमें टोटल हमारे पास जो स्ट्रेंथ है दैट इज 140, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 70-70, यानी 70-70, 50-50% बॉयज एंड गर्ल्स है. ठीक, इस तरह से अगर हम 11th की बात करें और हमारे पास जो 11th में स्टूडेंट है दैट इज 200. उसमें से 110 बॉयज है और 90 उसमें गर्ल्स है. अगर हम 12th की बात करें तो 12th क्लास में हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 260, और मान लीजिए उसमें से 160 बॉयज है और 100 गर्ल्स है. अब हम इसका टोटल करेंगे. अगर हम टोटल करते हैं तो हम देखेंगे कि टोटल हमारा कितना आया था? 725. बॉयज कितने हैं टोटल 9 to 12 में, और गर्ल्स कितनी है? तो हमने देखा 5, 7, 7, 14, 15 और 6, 21, 3, 4, 415 बॉयज हैं. अगर हम गर्ल्स को चेक करें 0, 5 और 7, 12, और 9, 21 का 1, 2 कैरी, और 310 गर्ल्स हैं. चेक कर ले टोटल, सही आ रहा है? 310 और 415, 725. ठीक है, सो दिस इज नॉन एज द सिंपल टेबल और वन फोल्ड टेबल. दिस इज द कॉम्प्लेक्स टेबल विच शोज द डेटा इन टू डाइवर्जन्स, दैट इज टू वे टेबल. ओके, Yes, ma'am. यहां तक कोई दिक्कत? नो No, मैम. ma'am. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Yes, ma'am. ले लिया. अब मान लीजिए ये तो हमने कहा टू वे टेबल. अब हम बात करें थ्री वे टेबल. अगर हम इसी डेटा को या किसी और डेटा को थ्री वे टेबल में बताना चाहते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स टेबल का ही ग्रुप है. थ्री वे टेबल. अब आपने यहां लिया मान लीजिए क्लास, अब जो स्टूडेंट्स आपने लिए थे, ठीक है, अब उस स्टूडेंट्स में क्या करें? थ्री वे बनाना है उसे, है ना. तो हमने टू वे में क्या किया? बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, अब उसमें आपने कहा स्टूडेंट्स में बॉयज. ठीक है, अब बॉयज कैसे लिया आपने? बॉयज में भी डिस्क्रिमिनेशन किया आपने. कैसे?
कि बॉयज फ्रॉम अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में भी कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत गांव से इधर ट्रैवल करके आते हैं और कुछ यहीं के लोकल हैं, तो हमने उसको इस तरह से किया। इसी तरह से हम गर्ल्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स में भी आपने क्या ले लिया कि रूरल अर्बन एरिया से कौन कौन सी है और रूरल से कौन कौन सी है। ठीक है, और फिर उसके आगे उसका टोटल आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थ्री फोल्ड टेबल हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में आपने क्या क्या डिफरेंशिएट किया, आइदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। फिर थर्ड फोल्ड क्या किया आपने कि उसको भी डिफरेंशिएट किया, बॉयज और गर्ल्स को भी किसमें डिफरेंशिएट किया, किसमें किया आपने बॉयज और गर्ल्स को भी, किसमें किया है, रूरल और अर्बन में आपने उसे डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो कितने फोल्ड हो गए, फर्स्ट फोल्ड दे आर स्टूडेंट, सेकेंड ऑन सेक्सुअल बेसिस और थर्ड रेजिडेंट बेसिस। सो दिस इज द टेबल विच शोज द थ्री टाइप ऑफ डायमेंशंस। क्लियर हो गया? यस Yes. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट आ सकता है आपके एग्जाम में कोई भी टेबल, मैनीफोल्ड में टू टाइप Yes, में टेबल का या थ्री वे का या फिर मैनीफोल्ड का, किसी का भी आ सकता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. अब देखिए, ये है थ्री वे टेबल। अब जब हम बात करते हैं मैनीफोल्ड, जिस टेबल में बहुत सारे डायमेंशंस दिए गए हैं, अगर हम इस टेबल की बात करें तो अभी हमने देखा इसे बोलते हैं मैनीफोल्ड। ये जो मैनीफोल्ड टेबल है ये भी कॉम्प्लेक्स टेबल का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने कहा क्लास। ठीक है, उस क्लास में आपने लिए स्टूडेंट्स। अब आपके स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन में देख रहे हैं, तो मान लीजिए बीए में क्या है, बीकॉम में क्या है, और बीएससी में। ठीक है, तो पहला फोल्ड आपने लिया कि क्लास है और उसमें स्टडी आउट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट फोल्ड हो गया। सेकेंड आपने कहा कि उसमें से भी बॉयज है और गर्ल्स है। फिर आपने बॉयज गर्ल्स में भी किया, आपने कहा कि उसमें अर्बन है और रूरल है। अब इस अर्बन और रूरल में भी आपने अगर डिफरेंशिएशन कर दिया, कैसे डिफरेंशिएशन किया कि आपने अर्बन में देखा कि मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। तो बॉयज में भी ऐसे अर्बन एरिया से आने वाले और ये मैरिड और ये अनमैरिड। यहां भी आपने ऐसे कर दिया, गर्ल्स में भी ये मैरिड और ये अनमैरिड। यहां भी आपने कर दिया मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, विंग वाइज आपने कर दिया। अब आपने कहा क्लासेस ली, जब आपने क्लासेस ली और आपने कहा उस क्लास में, यहां पर आपने कहा बीए में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम में और बीएससी में।
ठीक है, और यहाँ आपने ले लिया टोटल उनका। ठीक है, तो ये क्या बन गई मैनीफोल्ड, जिसमें आपने फर्स्ट बताया स्टूडेंट, सेकंड सेक्सुअल पे, थर्ड रेजिडेंशियल पे और उनके स्टेटस पे। सो इट इज नोन एज मैनीफोल्ड टेबल। क्लियर? आवाज Yes, आ रही? ma'am. आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये क्लियर हो गया बेटा आपको? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से किसी भी टेबल का आपके एग्जाम में फॉर्मेट आ सकता है ना। आपको वन वे टेबल का फॉर्मेट पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। Thank you, ma'am.